Hello everyone, welcome to our visionary classes. Today we will start with the lecture number 5 on the CUCET exam. Okay, so before I would like to start my lecture series, please subscribe our channel and contact us for the latest study material on this number. Okay, so let us start. So the first question that is from the research methodology part 2 section, as we can see, it tells that the probability distribution for a random error that is likely to move the value in the either direction. Okay, so in the either direction means दोनों डायरेक्शंस में. ठीक है, तो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जो कि एक रैंडम एरर शो कर रहा है, लेकिन वो जो रैंडम एरर है दैट इज मूविंग in the either direction, in both the directions. Okay, so the options are Gaussian distribution, Poisson's distribution, Hermit distribution and Levy distribution. ठीक है, तो हम पहले एक एक करके सारे डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं. ठीक है, so as we know, the Gaussian distribution is a kind of a normal distribution in a one-dimensional structure. Okay, so the formula for the Gaussian distribution is that 1 over root over 2 pi sigma square exponential minus half sample mean minus population mean square upon sigma square. Okay, where parameters are mean, mu and the variance is the sigma square. Okay, and standard deviation is the sigma. So these are the population parameters. Okay, these are considered as population parameters. Okay, but in the graph of this Gaussian distribution you can see the graph is two-sided. Okay, and the standard deviation means the random error that occurs, it spreads in the two direction. So this will be the most appropriate answer for this our question. Okay, so let us discuss one by one. It says that the probability distribution for a random error that is likely to move in the both direction is called as our Gaussian distribution. Okay, such a distribution is characterized by two parameters. Okay, there are two parameters, that is mu, the mean, the average value, and the sigma, that the standard deviations. Okay, so this Gaussian distribution is mainly defined by the two parameters, that is the mean as well as the sigma, that is the standard deviations. Let us discuss Poisson's distribution too. Okay, so the Poisson's distribution is actually an important type of probability distribution function. Okay, you should remember that one was the continuous distribution function, but this one is a discrete frequency distribution. Okay, this is a discrete frequency distribution which gives the probability of a number of independent events occurring in a fixed time. Okay, so this is the definition of the Poisson's distribution. Okay, so moving on to the formula of the Poisson distribution, you can see the probability density function for the Poisson's distribution is lambda to the power x e to the power minus lambda upon x factorial, where x is taking the values of 0, 1, 2 and 3, while lambda is the mean number of occurrence in a particular type of interval. Okay, u is the Euler's constants. So what does px means? The probability of x success over a given time of space, means how many times probability gets successful. Okay, and lambda is the expected number of the success per time in a space unit. Okay, so if we calculate the formula for the mean and variance of a Poisson's probability distribution, we have this. Okay, the expected number of success per time is equivalent to the population mean, while the variance is equal to expected value of x minus mu whole square equal to lambda. Okay, so these two are same in the Poisson's probability distribution function. Okay, so this is the graph. Here you can see it is not going either side, but it takes the discrete values. Okay, you can see these are points, these are the discrete values. Okay, here you can see dotted points are there, so that's why this is the discrete distribution. Okay, and it is moving in only one direction, as you can see it. Okay, so this will not be our question's answer. Now
in the Hermit distribution, we can see Hermit distribution tells that in the probability theory and statistics, the Hermit distribution named after the Charles Hermit, okay, is a discrete probability distribution function used to model count the data with more than one parameter. Okay, here also more than one parameter is used, but the points are discrete. Okay, so the points are discrete. You are just joining the lines of that discrete points. Okay, so this is also a kind of discrete probability distribution. This distribution is very flexible in terms of ability to allow a moderate over dispersion in the data. Because this is flexible, because here one point is up, other point is down, then up, then down, then up, then down. It follows all the points path, okay, instead of having a continuous graph. Okay, so this will be Hermit distribution, but it is a discrete probability distribution. While in the Lewis distribution, you can see in this distribution, in the probability theory and statistics, the level distribution named after the Paul's level is the continuous probability distribution for negative random variable. Here also you can see the graph is moving towards one side, that is negatively skewed. Okay, so this will be not our answer because it is moving only in one direction. Okay. So moving on to the next question. The next question says that the census carried out by the government is an example of. Okay, let us discuss about the census. Okay, let us discuss about the census, then you can know the answer. Okay, so the 2021 census of India will be the 16th Indian census. Okay, will be taken in 2021 as per the rule of our current government. Okay, the 15th Indian census was taken in 2011. Okay, attempted to estimate the population based on the socio-economic and caste status. Okay, for the first time since 1931. Okay, after 1931, India has taken its first census on 2011. Okay, now it will be taken in 2021. However, as the enumeration was based on the recording the respondent declaration, it led to creations of hundreds of thousands of caste and subcategories in the India. Okay, so this is a particular kind of descriptive type of research, because here you can see all the data was taken by some government peoples. Okay, जैसे कि आपके घर में जो कि जनगणना वाले आते हैं, वो आपके घर में आके आपके घर के सभी मेंबर्स की जनगणना और उनका डिटेल लिखते हुए जाते हैं. ठीक है, तो वो एक तरीके का डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हुआ, क्योंकि वहां पे एक प्रॉपर प्लान्ड वे में गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आए और आपका सारा डाटा लेते हुए गए हैं. तो दिस इज ए काइंड ऑफ descriptive research. Okay, now the descriptive research is defined as the research method that describe the characteristics of a population or phenomena that is being studied. Okay, so यहाँ पे आपकी characteristics पता चल रही है. क्या characteristics है? socio-economic characteristics और caste characteristics. Okay, so this will be the answer. Okay, और अदर एग्जांपल्स की बात करें तो अदर ऑप्शंस में उन्होंने दे रखा है कैजुअल रिसर्च. ओके, तो कैजुअल रिसर्च जो भी होता है, जैसे कि आप कोई भी चीज को सर्च करते हैं अगर इंटरनेट में, दैट इज अ काइंड ऑफ कैजुअल रिसर्च. आप उसके बारे में जानकारी खोज रहे हैं. ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात करें तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज द प्रिलिमिनरी रिसर्च टू क्लैरिफाई द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व. ठीक है, तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको किस तरीके का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम एक प्रिलिमिनरी रिसर्च करते हैं, जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं नए काइंड ऑफ आइडियाज उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो उसको हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है अप्लाइड रिसर्च में कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं. ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च, और दूसरा देकर रखा है रियल टाइम प्रॉब्लम्स. अगर हम बात करें, हम थोड़ा इसका बेसिक्स जान लेते हैं. ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके के रिसर्च होते हैं. एक होता है बेसिक रिसर्च, दूसरा होता है अप्लाइड रिसर्च. ओके, इन बेसिक रिसर्च वी आर डिस्क्राइबिंग अबाउट द फंडामेंटल पार्ट्स. ओके, यहाँ पे फंडामेंटल पार्ट्स की हम डिस्कवरी करते हैं. ठीक है, यहाँ पे किसी तरीके की डिस्कवरी होती है नई नॉलेज की. ठीक है, और टेक मेनी ईयर्स. ठीक है, बहुत साल लग जाते हैं इसको रिसर्च को हमको कैरेट आउट करने के लिए, जो कि हमारी बेसिक रिसर्च की बात चल रही है. लेकिन अगर हम बात करें अप्लाइड रिसर्च की, तो अप्लाइड रिसर्च
गिव्स दैट सेंट्रल पर्पस टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे हम इमीडिएट प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, ठीक है, जो कि तुरंत हमको सॉल्व करना रहता है, ठीक है। इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, ठीक है, तो जल्दी जल्द प्रोसेस होता है और इम्प्रूव्ड भी होता है, ठीक है। इन्फर्स बियॉन्ड द ग्रुप और सिचुएशन स्टडीज, ओके, ये हमारा जो रिसर्च होता है इसका बहुत सारा यूटिलाइजेशन होता है कि हम सिर्फ इसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज नहीं करते हैं, उसके बाहर भी हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए इसकी यूज करते हैं, ठीक है। और इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट रिलायज अपॉन द बेसिक रिसर्च। बात यहाँ भी आती है कि पहले जो बेसिक रिसर्च हो रखा है उसको उसी रिसर्च का थ्योरी को अप्लाई करते हुए हम इस रिसर्च को परफॉर्म करते हैं। लेकिन हमारा जानना जरूरी ये था कि इसमें अप्लाइड रिसर्च होता क्या है। तो आप अगर समझ सकते हैं कि ये एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन रिसर्च जो होता है वो इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है, और यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि वो इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो दिस विल डेफिनेटली बी द आंसर। ओके, नाउ हमारी बात आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की ही बात की जा रही है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी दो ऑप्शंस वैसे भी करेक्ट हो रहे हैं, तो इसका अर्थ ऑल ऑफ द अबव होने ही वाला है। रियल टाइम प्रॉब्लम्स को भी ये सॉल्व करता है, क्योंकि अगर एक्शन रिसर्च की बात कर रहे हैं तो दैट इज इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इमीडिएट प्रॉब्लम तक वही चीज होती है जो कि आपके रियल लाइफ में चल रही होती है, दैट विल बी रियल टाइम प्रॉब्लम। सो दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन टेल्स अस दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मेजर ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा। ओके, यहाँ पे बात क्या है कि कौन सी चीज जो कंसिस्टेंसी मेजर करती है किसी भी डाटा का, उसका मीनिंग क्या होता है। लेट अस डिस्कस की कंसिस्टेंसी होती क्या है, ठीक है। तो टिपिकली जो मेजर होता है कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा इंक्लूड्स द स्टैटिस्टिक्स सच एज रेंज, ठीक है, द लार्जेस्ट माइनस द स्मॉलेस्ट अमंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा। अब कंसिस्टेंसी का अर्थ ये होता है कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर डाटा है, एक सैंपल का अगर डाटा है आपके पास, वो कितना वेरी कर रहा है, ठीक है, हर टाइम के साथ वो कितना कंसिस्टेंट रह रहा है या कंसिस्टेंट कितना वेरी कर रहा है, तो उस चीज को पता करने के लिए हम मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी का यूज करते हैं, ठीक है। तो मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी का जो यूज होता है उसमें हम सबसे पहला जो पैरामीटर यूज करते हैं दैट इज रेंज। फिर आता है आपका वेरिएंस। तो वेरिएंस में होता क्या है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस ऑफ ईच वैल्यूज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द मीन वैल्यू इन ए डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला हमारा सिग्मा स्क्वायर होता है, ठीक है, जो कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, ठीक है, आप ये जानते हैं। साथ ही साथ अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो हम स्टैंडर्ड डेविएशंस का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा रेंज, हमारा variance as well as standard deviations, all these are reference to the consistency of a data. So यहाँ का आंसर ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। मीन मीडियन मोड जो होते हैं ये तो आपके पॉपुलेशन में चेंज होते ही नहीं है, तो आप इससे कैसे मेजर कर सकते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा को, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका आंसर होगा, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर। ओके, so the next question tells us that what does WW stands for. Okay, so WW stands for World Wide Web. ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट था क्योंकि WW से रिलेटेड और कोई टर्म यहाँ पे मैच नहीं हो रहा था। तो WW इज ए वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ इंटरनेट के यूजेस में। Now moving on to the next question. तो next question tells us which of the following is a non-parametric test. ठीक है, तो अब let us discuss about something about the non-parametric test. Okay, the parametric test is one which has information about the population parameter. Okay, so population के parameters पे जो चीजें हम जान रहे हैं उस चीज को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट। ओके, जहां पे हमको पॉपुलेशन के पैरामीटर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है वहां पे हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करते हैं। अब बात करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर्स क्या होते हैं। पॉपुलेशन पैरामीटर्स इज ए वैल्यू यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए सर्टेन क्वांटिफाइबल कैरेक्टरिस्टिक सच एज आवर मीन, वेरिएंस and often sometimes are estimated using the sample data. Okay, so mean and variance की बात करें तो those are the population parameters. तो इनका जब भी यूज होता है तो वहां पे हम पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कोई भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हमारे पास दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक होती है पैरामेट्रिक टेस्ट, दूसरी होती है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। फिर पैरामेट्रिक टेस्ट को भी डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ दी सैंपल्स। ओके, सो वन सैंपल टू सैंपल टाइप्स होता है, उसी तरीके से नॉन पैरामीटर का भी वन सैंपल टू सैंपल्स टाइप्स होता है। साथ ही साथ हमारे वन सैंपल में क्या होते हैं कि टी टेस्ट, जेड टेस्ट लागू हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट
टू सैंपल टेस्ट में इंडिपेंडेंट होते हैं और पेयर्ड होते हैं। तो टू टेस्ट में हमारा टू टेस्ट टी टेस्ट यूज होता है, जेड टेस्ट यूज होता है एंड पेयर टेस्ट यूज होता है। वाइल अगर हम बात करें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की तो उसमें काई स्क्वायर, कोलमोर सिमरॉफ, ठीक है, रन्स, बाइनोमियल, मैन विटनी, मीडियन, ठीक है, और एमनार, विल्किंसन एंड साइन, ठीक है, दीज आर काइंड ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ओके, सो ये टेबल आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसका आंसर सिंपल सा होगा क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि काई स्क्वायर टेस्ट को हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बोलते हैं। तो दिस विल बी द आंसर। ओके, यू शुड रिमेंबर दिस टेबल, ओके, दिस फ्लो चार्ट, you should remember this. Moving on to the next question. So next question tells us which among the following is the memory storing device in a computer. So the memory storing device की बात करें तो memory storing device में यहाँ ऑप्शन दे रखा है CPU, RAM, मदरबोर्ड एंड यूपीएस। ओके, सीपीयू आप जानते हैं किसी भी डेस्कटॉप में अगर राइट हैंड साइड में आप कुछ चीज देखते हैं, ठीक है, ये आपका मॉनिटर होता है, ठीक है, मॉनिटर के साइड में आपका यहाँ पे एक मशीन लगा रहता है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, ठीक है। तो सीपीयू होता क्या है? सीपीयू होता है ब्रेन, ठीक है, ब्रेन, किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन को हम सीपीयू बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे सारी प्रोसेसिंग चीजें होती हैं, सारी फंक्शंस वहीं पे लागू होते हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग, टू परफॉर्म and subtraction, to read the instruction and data for the memory, to give the commands as well as to control the timing of the information, to control and store of the data in the instructions, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेसिंग वाले काम जो होते हैं वो हमारे सीपीयू में होते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम यूपीएस की तो यूपीएस एक अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई की बात करता है, ठीक है। तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई अर्थ है अगर आपकी बिजली चली जाती है या आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है तो उस समय में लैपटॉप में जो इम्पोर्टेंट वर्क हो रहा होता है तो उसको स्टॉप ना हो जाए, एक अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का वो होता है, आपका कनेक्शन होता है किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ जो आपके पावर को मेंटेन करता है, ठीक है। तो वो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई आपके डेस्कटॉप में मेनली खासकर देखे जाते हैं जो आपके वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए तुरंत आपको सप्लाई देती है इन केस की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, ठीक है। दोज आर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। लेकिन हमारे क्वेश्चंस में मेमोरी डिवाइस की बात की गई थी तो मेमोरी डिवाइस में रैम आएगा क्योंकि दैट इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। चलिए मदरबोर्ड की बात कर लेते हैं। तो मदरबोर्ड में सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि हम बात करें पीसीआई सर्किट्स होते हैं, सीडी ड्राइव्स वगैरह भी होते हैं, हार्ड डिस्क भी होता है, माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, रैम भी होता है, एज वेल एज वीडियो कार्ड्स भी होते हैं, ठीक है। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जिसके ऊपर सारे के सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं हमारे कंप्यूटर के इंटरनल जो हमारे डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे मदरबोर्ड्स पे लगे होते हैं, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हैव ए नाइस डे।